Hello students. So students, we all know that we are completing chapter number 3, that is trigonometric functions, okay? And this is the last part of this chapter, that is graph of trigonometric functions, okay? Students, in the previous part of the video, we have covered all the exercise like 3.1, 3.2, 3.3 and 3.4. And I told you in the last part of the chapter, I will tell you the graph of trigonometric functions, okay? So today we will study how to draw the graph of particular trigonometric functions, okay? So our first trigonometric function is sine x. We all know that there are 6 trigonometric functions, okay? So basically 3 are main trigonometric function and the other 3 are the just the reciprocal of first 3, okay? So for understanding the graph of trigonometric functions, we will only study the graph of main 3 functions, that is sin x, cos x and tan x, okay? If you are able to draw these 3, then you can also draw the other 3, okay? So our first trigonometric function is sin x, y equal to sin x. Student, whenever you have a question to draw a graph of something, like in the 10th class or 9th class, you have studied draw the graph of y equal to x plus 1, okay? Suppose it is a question that suppose draw the graph of y equal to x plus 1. So what you do, student, you take the value of x from yourself, like you make a table like this, okay? And here is the value of x and here is the value of y. Suppose x equal to 0, so y will be 1 in from this equation, okay? X equal to 1, then y will be 2. X equal to 2, then y will be 3, and so on. You can take many points, okay? So first point is r 0, 1, second point is 1, 2, and third point is 2, 3. Similarly, you can take out many other points, okay? After that, what you do? You draw xy axis, and what you do? You plot these points. You plot these points. Suppose it is 1, 2, 3. It is 0, 0. It is minus 1, minus 2. It is 1, 2, 3, 4. It is minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Okay. So suppose when the point is 0, 1, it will come here on y-axis. When the point is 1, 2, it will come here. Like this, many points will come, and you join all these points to make the graph of particular things, okay? So same concept, student, we will apply to draw the graph of sin x, okay? Now, why I have written y equal to sin x? Because, student, we are studying trigonometric functions, okay? Y is another variable, x is another variable, and this whole is variable. This whole term is known as trigonometric function. And because we are studying the graph of trigonometric function, so sine is associated with some angle. Like when the angle of x will be 0, the value of sine 0 will be different. When the value of x is 30, then again the sine value is again different. कहने का ये मतलब है स्टूडेंट कि x क्या है यहाँ पर? We all know that अगर कोई भी चीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एसोसिएट होती है, जैसे कि sin x, sin y, तो जो x और y होते हैं वो एंगल होता है, ठीक है? अब x जो है एंगल है, तो एंगल डिग्री में भी हो सकता है और किस में हो सकता है? रेडियन में. तो उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. अब एक चीज ध्यान देना, आप एंगल जो होता है, एंगल की जो रेडियन यूनिट होती है स्टूडेंट, हमने एंगल की 2 यूनिट पढ़ी है, एक पढ़ी है रेडियन यूनिट और एक पढ़ी है डिग्री यूनिट, ठीक है? तो जो रेडियन होता है, आपको मैंने बताया था, जब भी रेडियन जो अगर कोई एंगल आप रेडियन में निकालते हो, तो जो भी वैल्यू आता है वो क्या होता है? एक नंबर होता है. क्या होता है? एक नंबर. समझ रहे हो मेरी बात? जैसे कि मान लो π/3, मान लो π/3 है, ठीक है? ये रेडियन वैल्यू है. तो अगर पाई की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा? 22/7 × 3 या 22/21, ये आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट, तो आप देखते हो कि एंगल की रेडियन यूनिट को जब सॉल्व करते हैं हम लोग,
तो हमको एक नंबर मिलता है। तो ऐसे तो हमें कुछ भी नंबर मिल सकता है, ऐसे हमें +100 मिल सकता है, +200 मिल सकता है, डेसिमल में मिल सकता है, पॉजिटिव मिल सकता है या नेगेटिव भी मिल सकता है। तो पॉजिटिव में मैक्सिमम कितना मिल सकता है, इनफाइनाइट, और नेगेटिव में भी कितना मिल सकता है, इनफाइनाइट। तो कहने का मतलब ये है, रेडियन इज द रेडियन मेजर ऑफ अ एंगल इज इक्विवेलेंट टू द रियल नंबर। समझ में आया? किसी भी एंगल का जो रेडियन यूनिट होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, रियल नंबर के। समझ में आया? तो कहीं आपसे ये कह दे कि क्या एंगल का रेडियन यूनिट कोई रियल नंबर होता है, तो आप कहोगे हाँ। फिर वो पूछेगा क्यों होता है, तो आप ऐसे कोई भी एग्जांपल लेकर उसको शो कर दोगे, तो उससे पता चलेगा जब हम किसी एंगल की रेडियन यूनिट को सॉल्व करते हैं तो हमें एक नंबर मिलता है, और हमें कोई भी नंबर मिल सकता है। हमें पॉजिटिव नंबर मिल सकता है, हमें नेगेटिव नंबर मिल सकता है, हमें इंटीजर मिल सकता है, हमें डेसिमल मिल सकता है, हमें प्लस इनफाइनाइट मिल सकता है, हमें माइनस इनफाइनाइट मिलता है। तो जब आप ड्रॉ करते हो, मान लो आपकी ये नंबर लाइन है, ये 0 है, इधर आप जाते हो तो पॉजिटिव मिलता है, इधर जाते हो तो आप नेगेटिव मिलता है। तो इधर आप अगर इनफाइनाइटली जाओगे तो सबसे लास्ट में क्या मिलेगा, प्लस इनफाइनाइट, और इधर जाओगे तो माइनस इनफाइनाइट। इसीलिए जो रियल नंबर होता है उसको, आर फॉर रियल नंबर, उसको हम लोग माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट भी लिखते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि रियल नंबर जो होता है वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होता है, लेकिन इनफाइनाइट वाली वैल्यूज लेते नहीं है हम लोग। इस ब्रैकेट का मतलब जानते हो, इस ब्रैकेट को बोलते हैं ओपन इंटरवल, जो कि आपको चैप्टर नंबर 2 में बताया गया होगा। ये जो ब्रैकेट होता है, राउंड ब्रैकेट, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसका ये मतलब होता है कि जो ये दोनों वैल्यूज होती है, ये दोनों वैल्यूज एक्सक्लूडेड होती है, और इनकी बीच की जो वैल्यू होगी वो केवल इंक्लूडेड होगी। इसी तरह अगर मैं ऐसे लिखता हूं 1, 2, तो इसका ये मतलब हुआ, ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। समझना, राउंड ब्रैकेट होगा तो इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, और इसको बोलेंगे क्लोज इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल में ये जो वैल्यू लिखी होती है इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, उनके बीच की वैल्यू इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और क्लोज इंटरवल में ये दोनों वैल्यू भी इंक्लूड होगा, और इनके बीच की जो इनफाइनाइट नंबर्स होंगे वो भी इंक्लूड होगा। तो यही डिफरेंस होता है ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में। ये मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि ये आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 2 में, नहीं तो इसको कोई जरूरत नहीं है। तो अगर कोई भी रियल नंबर लिखा हो स्टूडेंट, तो उसका क्या मतलब होता है, उसका यही मतलब होता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। यहाँ पे हम लोग ओपन इंटरवल यूज करते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स के डिक्शनरी में इनफाइनाइट कोई नंबर हम लोग उसको डिफाइंड नहीं मानते हैं। तो अगर डिफाइंड ही नहीं है तो उसको हम लोग ले भी नहीं सकते, तो इसीलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा होता है। ठीक है, तो रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, और किसी भी एंगल का रेडियन यूनिट रियल नंबर के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग जो भी एंगल लेंगे स्टूडेंट, जब इसको हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो हम लोग रेडियन में ही लेंगे। ठीक है, आपको ही पता है कि अगर 0 डिग्री है तो उसका रेडियन मेजर 0 ही होगा। ठीक है, अगर कोई एंगल 30 डिग्री है तो उसका रेडियन मेजर क्या होगा, π/6 होगा। अगर 60 डिग्री है तो π/3 होगा, अगर 90 डिग्री है तो π/2 होगा। ऐसे ही आप 2π तक कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आपको मैंने बताया था कि sin x और cos x की वैल्यू 360 डिग्री के रोटेशन के बाद से फिर से रिपीट करने लगता है। जैसे कि आपको मैंने बताया था ना कि sin 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, एंड cos 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई साइन जो फंक्शन होता है वो 360 डिग्री के बाद फिर से वही सारी वैल्यू रिपीट करने लगता है जो पहली मिली थी। जैसे साइन 390 की वैल्यू वही होगी जो साइन किसकी होगी, 30 की वैल्यू। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, साइन 360 प्लस 30 इज इक्वल टू साइन 30। ये आपने पढ़ा है कि साइन 360 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और मैंने आपको बताया था 360 प्लस थीटा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो कहने का ये मतलब है कि साइन फंक्शन, ये समझना ही बात को, ये आप लिख लेना, साइन फंक्शन एंड कॉस फंक्शन दोनों पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, और 360 डिग्री के बाद अपने आप अपनी वैल्यूज को रिपीट करते रहते हैं। जैसे कि जब एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से वही सारे एंगल आने लगेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है 360 डिग्री के रोटेशन के बाद
साइन एंड कॉस अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं, इसीलिए साइन और कॉस क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं, पीरियोडिक। पीरियोडिक मतलब जो पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करने लगे। और साइन और कॉस का जो पीरियड होता है वो होता है 360 डिग्री या 2 पाई। डिग्री में बोलोगे तो 360 और पाई में बोलो रेडियन में बोलोगे तो 2 पाई। ठीक है, तो आप बस ये याद रखना कि साइन एंड कॉस पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। पीरियोडिक इसलिए होते हैं क्योंकि 360 डिग्री के रोटेशन के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करने लगते हैं, इसीलिए इनका जो पीरियड होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री या 2 पाई। ये सब आप लिख लेना। ठीक है, अब जब इसकी ग्राफ की बात करेंगे स्टूडेंट, तो ग्राफ बनाने के लिए हमने जब आपको वैल्यूज बताया था तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यू बताई थी 0 से लेकर 360 तक बताई थी। ठीक है, मतलब कि मैंने आपको जब ASTC बताया था तो वहां पे बताया था कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, और एक सर्कल ऐसे ड्रॉ किया था। ठीक है, तो जो भी आपने वैल्यूज पढ़ी है साइन कॉस टेन या कोसेक सेक कॉट की, वो 0 से लेकर 360 तक ही पढ़ी है। उसके बाद तो फिर से वही आने लगेंगे एंगल। तो आप ध्यान दो स्टूडेंट, हम लोग जब ग्राफ बनाएंगे तो साइन एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो क्वाड्रेंट के हिसाब से बनेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होगा। क्योंकि जैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट कंप्लीट होगा वो फिर से फर्स्ट में फिर से वो वही चीज आने लगेगा। समझ रहे हो वो चीज? देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री होता है, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180, थर्ड 180 से 270 एंड फोर्थ 270 से 360, और उसके बाद फिर से वही चीजें आने लगती हैं। तो कहने का मतलब है इस ग्राफ को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। मतलब कि 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 एंड 270 से 360। ठीक है, उसके बाद से फिर वही वैल्यू आने लगती है क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो अब देखो जब आप ग्राफ बनाओगे स्टूडेंट, तो आपको ही पता है ग्राफ बनाने के लिए एक एक्स एक्सिस होनी चाहिए और एक वाई एक्सिस। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, यहां लिख लेते हैं हम लोग एक्स और यहां लिखते हैं वाई। वाई क्या है हमारा, साइन एक्स। ठीक है, तो एक्स अगर 0 डिग्री होगा स्टूडेंट तो साइन वाई इक्वल टू साइन 0, यानी कि कितनी होती है वैल्यू, 0। ठीक है, अब मुझे वो एंगल निकालने हैं जो हमारा क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं। जैसे कि अब मैंने आपको बताया था जितने भी एंगल 90 के मल्टीपल होते हैं वो क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं। मतलब कि जब हम निकालेंगे तो एक 90 हो गया, फिर एक 180 हो गया, एक 270 हो गया, 360 हो गया, ऐसे। ठीक है, तो 0 पे तो 0 आया, ऐसे ही π/2 यानी कि 90 पे कितना आएगा, y इक्वल टू 1, पाई पे कितना आता है 0। यहां पे y नहीं लिख रहा हूं मैं, यहां पे केवल ये लिख दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप पुट करोगे x की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ गया। ऐसे ही जब x की वैल्यू π/2 पुट करोगे तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, x की वैल्यू पाई पुट करोगे तो साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। ऐसे ही जब 3π/2 मतलब 270 डिग्री, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1। और ऐसे ही जब 2π पुट करोगे तो फिर से क्या आ जाएगी, 0। तो देखो ये सारे मैंने क्वाड्रेंटल एंगल निकाले हैं, 0 तो 0, उसके बाद 90 डिग्री, फिर 180, फिर 270, देन 360। अब जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे स्टूडेंट तो देखो कैसे करेंगे। मान लो मैंने x एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस बनाया है ऐसे, x डैश, y एंड y डैश। ठीक है, अब देखो ये ओरिजिन है, मान लो O, यहीं पे 0 डिग्री बनेगा। अब देखो यहां मान लो आप π/2, देन पाई, देन 3π/2, देन 2π, आफ्टर दैट 5π/2 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही नीचे इधर -π/2, -π, -3π/2, -2π, -5π/2। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैंने x एक्सिस से बना लिए क्योंकि x जो था हमारा वो एक एंगल है, तो x पे हमने एंगल्स को ले लिया। अब y पे हमारा क्या है, यही y पे हमारा क्या है, साइन x ना, मतलब कि x पुट करोगे तो y की वैल्यू मिलेगी। तो अब ध्यान दो x इक्वल टू 0 पर साइन 0 0 होता है तो यहां पर आएगा। ठीक है, ओरिजिन पे जब 0 था
अगर पॉइंट देखोगे आप तो पॉइंट यहाँ से क्या आएगा 0,0 आएगा ना, यहाँ से क्या आ जाएगा π/2,1, यहाँ से क्या आ जाएगा π,0, यहाँ से आ जाएगा 3π/2, और यहाँ से आ जाएगा 2π,0। ये पॉइंट से ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप समझना चाहते हो तो डायरेक्टली भी समझ सकते हो, मैं बस समझाने के लिए ये चीज लिख रहा हूँ। तो जब x 0 था तो y भी 0 आया, जब मान लो ये 1 है और ये 2 है और ये -1 है और ये -2 है, ठीक है। अब ध्यान दो, जब π/2 था, देखो आपको पता है ना कि 0 से 90 डिग्री तक क्या होता है, 0 से 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और 90 डिग्री पर साइन की वैल्यू 1 होती है, तो यानी कि यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो यहाँ पर आएगा, दैट इज π/2 पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1, ठीक है। ऐसे ही साइन पाई, जब x की वैल्यू पाई होगी तो साइन पाई 0 होता है तो वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, x एक्सिस पर ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पाई कॉमा 0 कहाँ पर आएगा x एक्सिस पे। ऐसे ही जब 3π/2 होगा तो साइन 3π/2 की वैल्यू -1, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, और फिर से यहाँ पर, और फिर से वही चीज रिपीट करने लगेगा। अब ध्यान दो, मैंने तो देखो 0 से π/2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से पाई तक सेकेंड, पाई से 3π/2 तक थर्ड, और 3π/2 से 2π फोर्थ, उसके बाद से फिर से वही कोऑर्डिनेट रिपीट होने लगेंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, 0 से π/2 तक बहुत सारे एंगल आते हैं, 30 आता है, 45 आता है, 60 आता है। आपको पता है साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 1/2 यहीं कहीं आएगा। साइन 60 √3/2, तो वो थोड़ा सा ऊपर आएगा। ऐसे ही करते करते साइन 90 पे मैक्सिमम हो जाता है, दैट इज 1। तो ऐसे ही जब आप ज्वाइन करोगे ना इन सबको तो कुछ ऐसा आएगा, ऐसे, ठीक है। और इधर भी क्या आएगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, ऐसा ग्राफ आएगा। क्यों ऐसा ही ग्राफ आया स्टूडेंट, क्योंकि इन 0 से 90 के बीच में कई सारे एंगल आते हैं। आपको पता है 30 आता है, तो 30 पर कितना होगा 1/2, यानी कि 0.5 वैल्यू होगी, तो 0.5 यहाँ कहीं आएगा। देन √3/2, √3 की वैल्यू होती है 1.732, उसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो 0.8 करीब आएगा, तो 0.8 यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही 90 पर कितना हो जाता है 1। उसके बाद 90 से 180 के बीच में आपको पता है ASTC रूल के हिसाब से साइन की वैल्यू घटती है। आप चेक करोगे तो साइन 180 पे उसकी वैल्यू कितनी होती है 0, क्योंकि साइन की वैल्यू 0 कब होती है, जब एंगल पाई का मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल, तो साइन पाई पे आ गया 0। ऐसे ही 3π/2 पे -1। तो अब एक चीज देख रहे हो स्टूडेंट, जब ये ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया तो देखो यहाँ पे जो साइन की वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर है और नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू, ये ग्राफ ऊपर कितने तक जा रहा है 1 तक, और नीचे कितने तक जा रहा है -1 तक। देखो साइन x किस पे रिप्रेजेंट है, y एक्सिस पे रिप्रेजेंट है। साइन x इज इक्वल टू क्या है y, यानी कि साइन की जो भी वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू होगी, ठीक है। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है 1 तक, और मिनिमम वैल्यू कहां तक जा रही है -1 तक। तो इससे ये पता चलता है कि जो साइन फंक्शन होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, और उसी के बीच में रोटेट करता रहेगा। आपने देखा होगा कि साइन 0 0 होता है, साइन π/2 1 होता है, साइन पाई 0 होता है, साइन 3π/2 -1 एंड साइन 2π 0। उसके बाद 2π के बाद तो फिर से वही चीज आने लगेगी ना, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है ये। और देखो आप खुद देखो, यहां से लेकर यहां तक कितना इंटरवल है 2π है ना, 0 से लेकर 2π तक 2π है। उसके बाद फिर से 2π के बाद रिपीट करेगा, फिर से 2π के बाद रिपीट करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो साइन और कॉस फंक्शन होते हैं वो 2π एंगल के बाद अपनी वैल्यूज रिपीट करते रहते हैं, इसीलिए इनकी जो पीरियड होता है वो 2π होता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1, ठीक है। इसके बाद मैंने क्यों नहीं ड्रॉ किया, क्योंकि इसके बाद भी सेम यही ग्राफ आएगा, ऐसे 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 ऐसे, देखो ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे आगे जाता रहेगा, हर 2π इंटरवल के बाद वो रिपीट होता रहेगा। इसीलिए इसका जो पीरियड होता है स्टूडेंट, इसका जो पीरियड होता है वो कितना होता है 2π, ठीक है। एक चीज और आपने ये पढ़ा है तो ये भी लिख लो, जो साइन का डोमेन होता है, डोमेन जो होता है स्टूडेंट वो x की वैल्यू होती है,
डोमेन जो होता है वो x की वैल्यू होती है, x की वो वैल्यू होती है जिसपे फंक्शन हमारा डिफाइंड होता है। तो एंगल x क्या है, एंगल को हम डिग्री में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेडियन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एंगल को जब रेडियन में रिप्रेजेंट करोगे तो वो एक रियल नंबर होता है, और रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। इसीलिए जो इसका डोमेन होता है वो क्या होता है, r। अगर आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा तो ये चीज आपको समझ में आएगी। ऐसे रेंज क्या होता है, रेंज का मतलब कि इसका पर्टिकुलर रेंज क्या, कहते नहीं है कि इस ब्लूटूथ की रेंज 10 मीटर है, मतलब कि यहां से यहां तक ही है, इसके बाद नहीं होगी। तो वैसे ही साइन का रेंज मतलब उसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, -1 से लेकर 1 तक। तो यानी कि उसका जो रेंज होगा वो -1 से लेकर 1 तक। तो ये दोनों चीजें भी आपको याद होना चाहिए कि डोमेन साइन का क्या होता है, रियल नंबर मतलब कि r, और अगर चाहो तो आप इसको सिंबल के टर्म्स में लिखोगे तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ठीक है, ये आप अलग से लिख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और रेंज इसका कितना हो गया, -1 से 1। देखो यहाँ पे मैंने क्लोज इंटरवल लिखाया है, क्लोज इंटरवल, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्लोज इंटरवल होता है, यानी कि -1 भी होगा, 1 भी होगा, और उनके बीच की कोई भी वैल्यू होगी। ठीक है, तो इतना हमको लगा आपको समझ में आया हो। इतना याद रखना, जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं sin x cos x tan x का, तो हम लोग क्वाड्रेंट के हिसाब से ड्रॉ करते हैं, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, और उसके बाद वैल्यू पुट करके उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। दो चीज याद रखनी है, sin x और cos x पीरियोडिक फंक्शन होता है, उनका पीरियड 2 पाई होता है, क्योंकि वो 2 पाई के बाद अपनी वैल्यूज रिपीट करते रहते हैं। डोमेन कितना होता है, रियल नंबर होता है, और रेंज कितना होता है, -1 से 1। डोमेन का मतलब x की वैल्यू, x क्या है, एंगल को रेडियन में ले सकते हैं, और एंगल कुछ भी ले सकते हैं, तो इसीलिए कुछ भी का मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो उसका मतलब उसका डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर। और रेंज जो होता है, x की जब वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू मिलेगी, तो y की वैल्यू को क्या बोलते हैं, रेंज, जिसपे फंक्शन क्या हो, डिफाइंड। y की जो वैल्यू होती है वही क्या होता है, उस फंक्शन का रेंज। ठीक है, और इस y इक्वल टू साइन x, यानी कि साइन x की जो रेंज है वो कहां से कहां जा रहा है, -1 से +1 तक, इसीलिए इसका रेंज होता है -1 से 1। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हो। इसके बाद मैं आपको y इक्वल टू cos x का बताऊंगा। ठीक है, सो प्लीज नोट डाउन इट। नाउ स्टूडेंट, our next trigonometric function is y equal to cos x। ठीक है, same procedure we will apply for drawing the graph of cos x like we did for sin x। ठीक है, तो पहले इसके लिए भी दो टेबल बना लिया, x और y। ठीक है, x की वैल्यू 0 पे, cos 0 कितना होता है, 1। ठीक है, मतलब y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 90 यानी कि π/2 पे 0, पाई पे -1, 3π/2, 3, ये सारे वैल्यू रेडियन में है। अगर आप डिग्री में जाओ तो डिग्री में भी जानते हो आप, π/2 को 90 बोलते हैं, पाई को 180, 3π/2 को 270, एंड 2π को 360। तो इन सारी पे वैल्यूज मैंने आपको बताया था कि 0 पे cos 0 1 होता है, cos π/2 पे cos π/2 0 होता है, पाई पे cos π -1, 3π/2 पे 0, एंड 2π पे 1। तो वही चीज करेंगे, जब 0 था, जब x की वैल्यू 0 थी, तो y की वैल्यू कितनी मिली स्टूडेंट, 1। यानी कि यहां से जो पॉइंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, 0,1 ना। तो 0,1 कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, यही तो आएगा 0,1। तो ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, अब π/2 पर कितना है, 0। तो π/2 पर ये जो पॉइंट निकलेगा π/2, 0, तो π/2, 0 x एक्सिस पे आएगा, और वहां पे y की वैल्यू 0 है, तो वो यहां पर आ गया। ठीक है, ऐसे ही पाई पर जब आप पाई लिखोगे तो कितना आएगा, -1। तो पाई यहां पर है और -1 यहां पे, तो वो वैल्यू यहां कहीं आएगी, वो पॉइंट ये आएगा। ऐसे ही 3π/2 पे कितना है, 3π/2 पे कितना है स्टूडेंट, 0। तो 3π/2 यहां पर है और 0 यहीं पर आएगा, और 2π पे कितना है, 1। तो यहां से जब इसका पॉइंट लिखोगे 2π, 1, तो 2π यहाँ है और 1 यहाँ है, तो यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो देखो 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकेंड, 180 से 270 थर्ड, एंड 270 से 360 फोर्थ। अब जब आप देखोगे 0 से 90 के बीच में 0 पे 1 होती है वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1 होती है,
cos 30 की वैल्यू √3/2 यानी कि 0.8, ठीक है, cos 60 की वैल्यू 0.5 और cos 90 की वैल्यू 0। तो आप देख रहे हो वैल्यू डिक्रीज करती है cos की 0 से लेकर 90 के बीच में। जब एंगल 0 से 90 के बीच में होता है तो cos की वैल्यू डिक्रीज करती है। cos 0 पे 1 है, cos 30 पे 0.8 है, cos 60 पे 0.5 है और cos 90 पे 0 है। तो वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो जब डिक्रीज करेगी तो ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ ऐसा ग्राफ बना, फिर π/2 से 3π/2 तक, अगेन पहले π/2 से π तक, मतलब कि 90 से 180। सेकंड क्वाड्रेंट में भी इसकी वैल्यू डिक्रीज ही करती है, क्योंकि आपको पता होगा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस नेगेटिव होता है एएसटीसी के हिसाब से, तो उसकी वैल्यू डिक्रीज ही करेगी। तो π/2 से देखो π/2 पे 0 है और पाई पे कितना है -1, तो देख लो ना 0 से कहां जा रहा है -1, मतलब कि डिक्रीज ही कर रहा है। तो अगेन यहां से कुछ ऐसा गया। अब देखो पाई और 3π/2, ये जो इंटरवल है पाई से लेकर 3π/2, इसमें क्या हो रहा है, कॉस इंक्रीज कर रहा है। आप खुद देखो स्टूडेंट, कॉस इंक्रीज कर रहा है कि नहीं। पाई से लेकर 3π/2 मतलब कि 180 डिग्री से लेकर 270 के बीच में पाई की जो वैल्यू है वो -1 से 0 तक जा रही है, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही है। तो देखो -1 यहाँ है और 3π/2 यहाँ है, तो फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। और फिर 3π/2 से 2π के बीच में 0 से कहां जा रही है 1, अगेन इंक्रीज कर रही है, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारा। देखो आप खुद देखो, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला पार्ट सेकंड क्वाड्रेंट है, ये वाला पार्ट थर्ड और ये वाला पार्ट क्या है फोर्थ। मैं समझाने के लिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। तो आप खुद देखो, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं तो cos की वैल्यू पॉजिटिव आई है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो सेकंड में भी cos की वैल्यू नेगेटिव ही है। थर्ड में भी cos नेगेटिव होता है तो नेगेटिव है लेकिन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और फोर्थ में पॉजिटिव होता है एएसटीसी के हिसाब से, तो फोर्थ में है। अब यही चीज ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे, और इधर जब ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो देख रहे हो आप स्टूडेंट, देखो 0 से लेकर 2π तक कुछ ग्राफ ऐसे बना है और फिर 2π से लेकर 4π तक फिर से ग्राफ वैसे ही बनेगा। तो मतलब 2π इंटरवल के बाद ये ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसीलिए cos x भी एक पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसका पीरियड क्या होता है 2π, ठीक है। अब देखो पीरियड की बात तो हो गई, अब इसका भी डोमेन एंड रेंज की बात कर लेते हैं। तो अगेन एंगल तो हम, अब देखो एंगल किस पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे, और देखो एंगल तो एक्स एक्सिस पे कहीं भी आ सकता है ना नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब कि वो माइनस इनफाइनाइट तक जा सकता है और पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो अगर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो हमेशा एक रियल नंबर ही होगा। और रियल नंबर किसकी, हम लोग डोमेन की बात कर रहे हैं, और डोमेन क्या होता है, एक्स की वैल्यू, और एक्स एंगल है और एंगल माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, इसीलिए डोमेन कितना होगा, रियल नंबर, मतलब कि आर। इसको चाहो अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ओपन इंटरवल में, ठीक है। और रेंज, अब रेंज देखो इसका, ये जो ग्राफ बना रहे हो आप, तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, y की मैक्सिमम वैल्यू 1 मिल रही है और मिनिमम वैल्यू -1 मिल रही है, और इसी के बीच में ग्राफ जा रहा है, ऊपर नीचे, मतलब कि मिनिमम -1 मैक्सिमम +1। तो इसीलिए जो y की वैल्यू होगी वही उसका रेंज हो जाएगा। तो रेंज कहां से कहां तक होगा, -1 से 1 तक, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y = cos x। प्लीज नोट डाउन इट स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट आवर नेक्स्ट फंक्शन इज y = 10x, ठीक है। y = 10x मतलब कि 10x, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर अगेन फिर से फॉलो कर देंगे। जब x की वैल्यू 0 होगी तो 10 0 0 होता है, ठीक है। जब x की वैल्यू π/2 होगी तो 10 π/2 यानी कि 10 90 डिग्री इनफाइनाइट होता है, ठीक है। जब x की वैल्यू π होगी तो 10 π 0 होता है। जब x की वैल्यू 3π/2 होगा तो इसकी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होगा, ठीक है। और 2π पे अगेन 0, ठीक है। तो आप ध्यान दो स्टूडेंट, आपने जब ये देखा होगा ये ग्राफ, तो आप सोच रहे होगे सर चलिए x तो y ठीक है, लेकिन π/2 3π/2 -π/2 और -3π/2 पे आपने ये वर्टिकल लाइन क्यों खींची है। तो स्टूडेंट ध्यान दो, 10 जो होता है वो 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल पे अनडिफाइंड होता है, क्योंकि 10 जब लिखते हो, आप खुद सोचो, जब आप 10 लिखते हो तो क्या लिखते हो, 10 जब x लिखते हो तो लिखते हो sin x अपॉन cos x, ठीक है।
और टेन डिफाइंड तभी होगा जब इसका cos x जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये एक तरह का रेशनल फंक्शन है, रेशनल, क्योंकि p अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। और टेन डिफाइंड तभी होगा क्योंकि टेन एक रेशनल फंक्शन है, और रेशनल नंबर में क्या होता है कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो तब डिनोमिनेटर जीरो होता कब है स्टूडेंट? cos x की वैल्यू जीरो कब होती है? जब x क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि cos x, मैंने आपको ये बताया था cos x इक्वल टू जीरो कब होगा? जब x क्या होगा, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा। बताया था ना ये चीज, cos x की वैल्यू जीरो तभी होती है जब x पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर ये पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा, मतलब कि अगर पाई बाई 2 हो, 3 पाई बाई 2 हो, 5 पाई बाई 2 हो, तो वहां पे 10 जो होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड मतलब या तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट मिलेगी या तो माइनस इनफाइनाइट मिलेगी, और दोनों अनडिफाइंड ही होगा। तो देखो आप 90 डिग्री पे 10 90 कितना होता है? इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को हम कैलकुलेट तो कर नहीं सकते, इसीलिए 90 डिग्री पे मैंने वर्टिकल लाइन खींची है। ठीक है, सिमिलरली 3 पाई बाई 2, मतलब कि 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल क्या होगा? पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल क्या होगा? पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। तो देखो पाई बाई 2 पे भी मैंने वर्टिकल लाइन खींची है, 3 पाई बाई 2 पे भी वर्टिकल लाइन खींची है, ऐसे ही आगे भी खींचेंगे तो 5 पाई बाई 2 पे खींचेंगे, फिर 7 पाई बाई 2 पे, और सेम प्रोसेस नेगेटिव डायरेक्शन में भी करेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान दो, जब x जीरो था तो y भी कितना है? जीरो। तो यहां से जो पॉइंट निकलेगा वो 0,0 निकलेगा, निकलेगा। तो देखो ये वाला पॉइंट हो गया 0,0। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में कई सारे एंगल आते हैं। 10 30 होता है 1/√3। ठीक है, और 1/√3 इज इक्वल टू 1/1.732, यानी कि 0.5। मतलब कि जब 10 की वैल्यू 45 डिग्री होती है, सॉरी कितनी, 30 डिग्री होती है, एंगल की वैल्यू 30 डिग्री होती है, तो 10 30 होता है, यानी कि y की वैल्यू 0.5 होगा, तो यहीं कहीं आएगा। फिर 45 पे, 45 डिग्री पे अगर 45 डिग्री होता है तो 10 45 1 होता है यहाँ पे। अब ध्यान दो, 10 45 1 और 10 60 कितना होता है? √3, यानी कि 1.732। 60 डिग्री पे 10 की जो वैल्यू आ रही है वो 1.732 यानी कि √3 आ रही है, और 10 90 पे कितना हो जा रहा है? इनफाइनाइट। तो जो ग्राफ होता है 10 का ना, वो बहुत रैपिड इंक्रीज करता है, मतलब कि कुछ ऐसा इंक्रीज करेगा, ऐसे जाता जाएगा और अचानक से इनफाइनाइट हो जाएगा, टच नहीं करेगा इसको ये टच नहीं करेगा, लेकिन ये इसका मतलब ही ये हुआ कि ये कहां पे टच करेगा? इनफाइनाइट का। ठीक है, बहुत रैपिड चेंज करता है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा रैपिड। ठीक है, अच्छा अब देखो, जब आप निगेटिव डायरेक्शन में आते हो स्टूडेंट, निगेटिव डायरेक्शन में 0 से लेकर -π/2 के बीच में, मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, -π/2, 0 से लेकर -π/2 किस क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो ऐसे ही जो 10 की वैल्यू होती है वो 0 से माइनस इनफाइनाइट जाती है, मतलब कि डिक्रीज होते 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 कहां जाएगी? ऐसे। तो अब ध्यान दो स्टूडेंट, π/2 पे भी इनफाइनाइट और -π/2 पे इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, तो जो ग्राफ होगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, किस इंटरवल में? -π/2 और π/2 के बीच में। अब ध्यान दो, 10 पाई कितना होता है स्टूडेंट? 0। 10 पाई होता है 0। ठीक है, तो मैंने 0 ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखो 10 3π/2 कितना होता है? माइनस इनफाइनाइट, सॉरी 10 3π/2 होता है, वो भी इनफाइनाइट ही होगा आपका, सॉरी 10 3π/2 भी इनफाइनाइट ही होगा। ठीक है, और 2 पाई 0। तो अब ध्यान दो, एएसटीसी के हिसाब से आपको पता है ना, 10 पाई प्लस थीटा इक्वल टू 10 थीटा होता है। जैसे आपने कॉस के टर्म में पढ़ा था, कॉस और साइन के टर्म में, कि साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसे ही 10 पाई प्लस थीटा इक्वल टू 10 थीटा। तो इसका ये मतलब हुआ कि 10 जो फंक्शन है वो 180 डिग्री के इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है। 180 डिग्री का इंटरवल मतलब पाई के इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज को क्या करता है? रिपीट करता है। मतलब कि 10 भी एक तरह का पीरियोडिक फंक्शन हुआ जिसका पीरियड कितना होगा? पाई। कॉस और साइन का 2 पाई और 10 का पाई। ठीक है, क्योंकि ये भी एक तरह का पीरियोडिक फंक्शन है। जैसे आपने ये पढ़ा था ना कि साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ पे 2 पाई है तो इसका मतलब इसका पीरियड 2 पाई। ऐसे ही कॉस 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो इसका पीरियड भी 2 पाई। ऐसे ही 10 पाई प्लस थीटा इक्वल टू 10 थीटा, यानी कि इसका जो पीरियड होगा वो कितना होगा? पाई। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसका पीरियड कितना हो गया? पाई। ठीक है,
अब देखो -π/2 से π/2 तक कितना डिफरेंस है स्टूडेंट? जब आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री या पाई। तो ये जो डिफरेंस है स्टूडेंट, ये कितना है? पाई। तो अगेन पाई डिफरेंस कहां से कहां तक होगा? यहां से यहां तक के बीच में होगा। 90 से 270 के बीच का डिफरेंस कितना है? 90 और 270 के बीच का डिफरेंस पाई। तो अगेन मैंने आपको बोला है ना कि 10 एक पीरियोडिक फंक्शन है जो कि पाई इंटरवल के बाद रिपीट करता है। तो यहां से यहां तक पाई हो गया 180, अब यहां से यहां भी 180 हो गया, और 10 पाई पे वैल्यू कितनी होती है? 0। तो यानी कि 10 3π/2 पे ऐसा कुछ होगा, ठीक है, और ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। देखो इधर से इनफाइनाइट और इधर से माइनस इनफाइनाइट, देख रहे हो। और जो इंटरवल है, कहां इंटरवल है? देखो π/2 से पाई, ये कितना डिफरेंस हुआ? 90 डिग्री का डिफरेंस हुआ, और ये भी कितना डिफरेंस हुआ? 90। तो 90 और 90 180 आया। और जो ग्राफ -π/2 से π/2 तक बन रहा है, वही ग्राफ π/2 से 3π/2 तक बनेगा। ऐसे ही वही ग्राफ 3π/2 से 5π/2, तो ये भी कुछ ऐसा ही होगा स्टूडेंट, ऐसा और ऐसा, और इस साइड भी कुछ ऐसा ही होगा। देखो यहां पर जब ड्रॉ करोगे आप, तो ये भी कुछ ऐसा ही होगा, ऐसा और ऐसा। मतलब कि जो 10 होता है ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन होता है जो अपने आप को 180 डिग्री के पर रिपीट करता है, मतलब कि अपनी वैल्यूज को रिपीट करने लगता है, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम ये आती है स्टूडेंट कि मैंने कैसे डायरेक्टली ड्रॉ कर दिया, ठीक है। देखो π/2 से पाई, देखो कौन कौन से क्वाड्रेंट है? 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से पाई, π/2 से पाई जो होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट। अब ध्यान दो, एसटीसी के हिसाब से थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 से 270, और जब इस ग्राफ को देख रहे हो तो पाई से 3π/2 वही डिफरेंस कर रहा है। पाई होता है 180 डिग्री, 3π/2 होता है 270 डिग्री। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है ना, तो इसलिए देखो 10 यहाँ पे क्या आया है? पॉजिटिव। इसका मतलब जानते हो क्या है? कि ये इनफाइनाइट को टच कर रहा है और नीचे माइनस इनफाइनाइट को टच कर रहा है, ठीक है। आप जब बुक में देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बस अब इतना याद रखना, 10 एक पीरियोडिक फंक्शन होता है जो 180 डिग्री के बाद अपनी वैल्यूज रिपीट करता है, क्योंकि 10 पाई प्लस थीटा इक्वल टू 10 थीटा होता है। और इसकी वैल्यूज के हिसाब से जब हम लोगों ने ड्रॉ किया तो π/2 पे प्लस इनफाइनाइट, -π/2 पे माइनस इनफाइनाइट, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। अब देखो ये, अब इतना अगर आपको पता चल गया तो यही चीज आपको यहां से यहां पे रिपीट करना है, ठीक है। अगर -π/2 से π/2 आपने ड्रॉ कर लिया तो π/2 से 3π/2 भी वही चीज होगा, बस पाई पे क्या हो जाएगा? 0। तो देखो 0 हो गया ऊपर नीचे। ऐसे ही 3π/2 से 5π/2 में भी सेम होगा, तो 2π पे, क्योंकि 10 जो होता है वो पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे 0 होता है, तो पाई पे 0 था, 2π पे 0 है, ऐसे ही 3π पे 0 होगा, फिर 4π पे 0 होगा। समझ में आया? और 90 के ऑड मल्टीपल पे हमेशा अनडिफाइंड होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो ये जो ग्राफ है आपका, ये 10x का है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर आप बुक पे पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है, जो मैंने बताया है, ठीक है। अगर आप बस इसमें ध्यान क्या देना है, साइन का कॉस का तो बहुत इजी था, इसमें क्या ध्यान देना है कि आप पहले 0 से 90 का ड्रॉ कर लो, 0 से इनफाइनाइट, और 0 से -90 का ड्रॉ कर लो, 0 से माइनस इनफाइनाइट। अगर ये चीज समझ गए और ये डिफरेंस समझ गया कि दोनों के बीच का डिफरेंस पाई है, तो बस पाई के डिफरेंस पे वही ग्राफ ड्रॉ करते जाना है। मतलब कि यहां से यहां तक का डिफरेंस पाई था, तो यहां से यहां तक का भी डिफरेंस पाई होगा, तो वही ग्राफ बनेगा, पाई पे 0 और इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ऐसे ही 3π/2 और 5π/2 पे भी सेम ही बनेगा, और 2π पे 0 हो जाएगा। तो मतलब कि प्रोसीजर सब सेम है। अगर ये बनाने आ गया तो बाकी तो वही चीज रिपीट कर रही है। देखो हर पाई के इंटरवल पे अपने आप को रिपीट कर रहा है, इधर भी और इधर भी। तो ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड पाई है, और इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होगा इसका? डोमेन इसका रियल वैल्यूज होगा, एक्सेप्ट वो वैल्यूज जो π/2 के ऑड मल्टीपल्स थे, मतलब कि 2n+1 π/2। ये मैंने इसलिए लिखा है। x तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग x वो वैल्यू नहीं लेंगे जो 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल हो। यहां से x देखो दोनों में x आया है ना, तो x तो आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन वो वैल्यूज नहीं लोगे जो 90 का ऑड मल्टीपल होगा, क्योंकि जो 90 का ऑड मल्टीपल होगा उस पर 10 अनडिफाइंड होता है। इसीलिए r में से किसको माइनस कर दिए? 2n+1 π/2, ठीक है। तो यही इसका डोमेन हो गया। और रेंज क्या हो जाएगा? आप खुद देखो, आप 10 की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? 10 की वैल्यू -∞ से +∞ जा रही है,
तो इसका जो रेंज हो गया वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू, कौन कौन सा एक्स हम ले सकते हैं जिससे फंक्शन डिफाइंड हो। तो एक्स तो हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वो वाला एक्स नहीं लेंगे जिसपे 10 क्या हो जाए, अनडिफाइंड, मतलब कि जिसपे या तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए या माइनस इनफाइनाइट आ जाए। तो वो तभी होता है जब एक्स पाई/2 का ऑड मल्टीपल होगा, क्योंकि यहाँ पे cos x है और cos x 0 तभी होता है जब x पाई/2 का ऑड मल्टीपल हो। तो मतलब कि एंगल कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वो एंगल नहीं लेंगे जो पाई/2 का ऑड मल्टीपल हो। तो एंगल अगर कुछ भी ले सकते हैं तो r हो गया, और उसमें से क्या माइनस करना है, पाई/2 का ऑड मल्टीपल, तो ये माइनस कर दिया, तो वो हो गया डोमेन। और रेंज मतलब कि 10 की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट और मैक्सिमम वैल्यू प्लस इनफाइनाइट। तो इस तरह स्टूडेंट साइन कॉस और 10 का हो गया, कॉसेक से कॉट का आप बुक से देख लीजिएगा ऐसे ही। ठीक है, अब ये चैप्टर स्टूडेंट मेरी तरफ से खत्म हो गया। अब आपको पढ़ना है, आप बुक से पढ़ो, बुक से इंफॉर्मेशन लो, डाउट आए तो आप डाउट पूछो। ठीक है, सो फ्रॉम माई साइड दिस चैप्टर इज ओवर। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 5, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड quadratic equations. Okay, so till then have a nice day, take care, thank you.